नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। और राहुल गांधी के भारत लौटते ही भाजपाई गरियाना शुरू कर दिए भाई। मतलब जरा सा तो इंतजार कर लेते, घंटे 2 घंटे का वक्त निकाल लेते, सुन लेते अपनी सच्चाई, लेकिन गरियाने लगे भाजपाई। ऐसे ही जाने अनजाने में कविता बन गई। कैमरे पर अगर आप इनका छाती पीटना, रोना, चिल्लाना देखेंगे ना, यकीनन मजा आ जाएगा। क्योंकि ऐसे हालात में जो पूरे देश को रुला रहे हैं, जब ऐसे हालात में नजर आते हैं ना, तो अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। ईवीएम, ईडी, ईसीआई, मोदी, ज्ञानेश, बेईमानी। राहुल गांधी ने जो जर्मनी में किया है, विदेशी खड़े हो गए सबके सब। क्योंकि बीच में टेलीप्रॉम्प्टर था ही नहीं। राहुल थे और वो छात्र थे, उसमें विदेशी छात्र भी थे, कुछ भारतीय छात्र भी थे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर एक एक नट बोल्ट सब खोल के रख दिया राहुल ने। अब फिर वही बात विदेश में बोल के जो है बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी जब विदेश में कहते थे, अरे पहले लोग भारत में पैदा होते थे, सोचते थे, कहां पैदा हो गया, शर्म आती है। तब तो भारत के माथे पर वो चंदन घिस घिस के लगाते थे, शीतल करते थे भारत की प्रतिष्ठा को, गौरव को। लाइए भाव को लाइए, क्योंकि बाइटें बहुत हैं, सुनवाएंगे वो जरूरी है। और फिर भाव स्वागत है, और फिर हम रोना पीटना, गरियाना, चिल्लाना वो सब भी दिखाएंगे। पहले 4 मिनट की क्लिप है, मैं कह दूं 4 मिनट की क्लिप है, अंग्रेजी का भाषण है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यही 4 मिनट की क्लिप नॉर्मली इतने लंबे नहीं सुनाते। 4 मिनट की क्लिप में बहुत कुछ है, एक साथ मिला तो हम कहीं एक साथ सुनवा देते हैं। प्ले कर दीजिए भैया, फटाफट प्ले कर दीजिए। In fact, just before coming to Hertie, my last assignment was working with the Congress, and it was the Karnataka elections, which the Congress did turn around and emerged victorious. Why do you think you've not been able to replicate that in any of the other states? That is the first question. Second question, I would just keep it very short. If you come to power, how would you create jobs? It's the thing on everybody of our minds. So there are, I mean, we have been able to replicate it. We've won election in Telangana. We've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework. If you're a large businessman and you try to support the Congress party, you're threatened. The ED, the CBI, these people land up. So there is an atmosphere in India where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective,
we helped build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. And so they use it as a tool for building political power. Look at the just look at the difference between how much money the BJP has and how much the opposition has. You'll see a ratio, 1:30. How does that happen? I mean, so there is an attack on the democratic system. Now, okay, so then you'll say to us, okay, so what? Well, as the opposition, we have to find ways to counter this. It's not good enough for us to say, there's a problem in the elections. We will deal with it. And we will create a method, a system of opposition resistance that will succeed, right? But we're not fighting the BJP. You have to understand that. We're fighting their capture of the Indian institutional structure, right? And this is not just me speaking. I mean, I travel around the country. This is what everybody says to me, right? The press conference that we did, it was actually information that we got from the ground, from people saying, listen, look, this is what has happened, right? So that's where it comes, that as far as the elections are concerned. थोड़ी लंबी बाइट थी, लेकिन एक एक बड़े गौर से मैं भी सुन रहा था। भाव भी बहुत व्यवहारिक जो देश में है हालात, वही बात कही। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस कुछ नई बात कह दी राहुल गांधी ने, वही बात है, लेकिन जर्मनी में कह दी तो बिलबिलाया। और ये खुद नहीं कही, एक सवाल के जवाब में कहा। हाँ, सवाल का जवाब ये था कि आप कर्नाटक में जीते, हाँ, लेकिन वो कर्नाटक की जीत आप बाकी जगह क्यों नहीं रिपीट कर पाए? उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं, हम तेलंगाना भी जीते, हम वहां पे भी जीते, हिमाचल भी जीते, हम हरियाणा भी जीते, ये हम मान सकते हैं, लेकिन नतीजा अलग है। महाराष्ट्र में हम आज भी कह रहे हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और बाकी जगह उन्होंने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है। एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने की कि ये इंस्टीट्यूट हमने तैयार की थी देश के लिए। हमने, मतलब कांग्रेस पार्टी 60 साल तक लगातार, आजादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस आई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी है, वो कांग्रेस पार्टी के समय ही हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये देश के लिए बनाई थी, हमने कभी नहीं सोची थी कि ये कांग्रेस की इंस्टीट्यूट्स होगी। बीजेपी के आने के बाद ये देश के बजाय इसको बीजेपी की समझने लगे, और उस हिसाब से फिर काम होने लगे। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ये सब बता दिया। अब आप कहोगे कि भाई प्रॉब्लम है तो आगे क्या? हम अपोजिशन है, हमको लड़ना होगा, इसका काउंटर करने के लिए नया सिस्टम खड़ा करना होगा, रास्ते ढूंढने होंगे, हम चुप नहीं बैठ सकते। वो कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई देश की बदनामी की उन्होंने जानबूझ के। सुनो 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 सुनो, मैं अब भारत से आया हूं, भारत में बड़ी परेशान है हमको, और भाई साहब बचाओ, ऐसे तो बात नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कहा कि इस भारत में ये स्थिति थी कि कोई अगला जन्म लेने को तैयार नहीं था, ये तो नहीं बोला। ये तो बहुत ज्यादा गाली थी, ये तो गंगा को गाली थी, हिमालय को गाली थी, इस भारत को, मातृभूमि को गाली थी। ऐसा तो नहीं बोला था। इट वॉज एन आंसर टू द क्वेश्चन। दूसरी बात, आशीष जी, उन्होंने कहा कि देखिए ईडी सीबीआई की पॉलिटिकल जितने भी केसेस हैं, मुझे एक बीजेपी का नेता बता दीजिए नहीं है किसी के खिलाफ केस, सारे विपक्ष के खिलाफ केस है। ये भी आपको देखना होगा ये क्यों हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, जर्मनी में राहुल गांधी ने बोला तो देश की बदनामी हुई, सुप्रीम कोर्ट ईडी को जूते मारता है और वो सारी दुनिया सुनती है। भाई अमेरिका में व्हाइट हाउस में क्या हुआ हमको पता पड़ता है ना सुबह सुबह यहाँ पे। आप मुझे बताइए, कोई प्लेन क्रैश होता है, वो ऑस्ट्रेलिया में अभी फायरिंग हुआ आतंकियों का, वो फायरिंग होने के 2-4 मिनट के अंदर सारे वीडियो पूरे दुनिया में थे। अब कल ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर आके कहे कि मेरे यहाँ फायरिंग हुई और जूस मारे गए, तो कोई अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया में लोग कहना शुरू के देश की बदनामी कर रहा है, देश की बदनामी कर रहा है।
अरे वो बोलेगा नहीं तो भी लोगों ने देखा है, हम्म, इस देश में क्या हो रहा है वो लोगों ने देखा है। एक बड़े राज्य का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहता है, अनिल देशमुख, लोगों ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। हेमंत सोरेन, केजरीवाल जेल जाते हैं, लोगों ने देखा है, पूरे विश्व को पता है। और उनकी जमानत में कोर्ट ने क्या कहा ये भी दुनिया ने देखा है। भाई अमेरिका में कौन सा राष्ट्रपति की लड़की के साथ पानी में डुबकी मार रहा था वो आज हमको पता पड़ रहा है भारत में, हाँ, लोकल अखबार में छप रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है भारत के। हम्म, हम भारत में ये हो रहा है, ये मतलब भारत में जो हो रहा है आंखें बंद करके, किसी को नहीं पता। राहुल गांधी ने पहली बार ओ ऐसा हुआ क्या, ओहो ओहो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ओहो। ये ब्राजीलियन मॉडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे लाइव थी, और इसमें आप मुझे बताइए, आशीष जी खुद न्यूज चैनल के प्रोग्राम, न्यूज लॉन्चर के कितने विदेश में लोग देखते हैं? रोज का डेटा आता है, रोज का ये भी दो बता डेटा दें। आता है, आपकी बात डेटा को मैं आता है। जोड़ दूं तो भक्त बहुत सारे कहेंगे देखो ये विदेश में देखते हैं इनको। ये डेटा बकायदे यूट्यूब देता है, और डेटा हाँ, जो देता है उसमें अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूएई में, जर्मनी में, फ्रांस में डेली जो न्यूज लॉन्चर की व्यूअरशिप है ये 1 लाख से कम की नहीं है, 1 लाख क्रॉस होता है डेली। आप डेली का। समझिए। अब मुझे बताइए, जब हमारे जैसे छोटे प्लेटफॉर्म का ये होता है, बड़े प्लेटफॉर्म सारी दुनिया देखती है, सब देखते हैं। चर्चा होती है, तो ये थोड़ी कि नरेंद्र मोदी जाने के बाद ही लोगों को पता पड़ता है कि भारत नाम का देश है। हम्म, ये अंधभक्त जो रो रहे हैं यहाँ पे सीना पीट के, इनसे ज्यादा मूर्ख मैंने नहीं देखे कोई। ये खुद एक कुएं में बंद मेंढक है, उसी में कूद के सोच रहे हैं कि यही दुनिया है। अरे कोई भी विदेश जाता है, हमारा एक्टर विदेश जाता है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन विदेश जाता है, तो लोग उसको वहां पे फोटो खींचने के लिए आते हैं, हम्म, स्वागत करते हैं। फिर आप कहोगे कि हिंदी में काम करता है वो, अमेरिका में क्यों लोग इसको पूछते हैं? लता मंगेशकर जी का लंदन के अल्बर्ट हॉल में शो हुआ, मराठी लता मंगेशकर हिंदी गाने गाती है, अंग्रेजी में क्या कर रही वहां पे? क्यों हाउसफुल हो गए थे उनके शो? क्यों महात्मा गांधी को देश पूरा विश्व पूछता है? हम्म, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन ये है। कौन सा हाँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महात्मा गांधी को? क्यों आज हमारे देश में मेसी के लिए लोग इतने लाइन में लगे हुए थे? कौन है मेसी भाई? हाँ, कौन है मेसी? हम्म, लेकिन दुनिया आई ना मेसी को देखने, क्योंकि फुटबॉल सबको हम्म, मालूम है। हम्म, आज मेसी कौन है ये मैं पूछूंगा तो लोग, कई बच्चे किसी के देख रहे होंगे तो बोलेंगे ये अशोक वानखेड़े पागल को देख रहे हो क्या, आपको इसको मेसी पता नहीं है, मूर्ख आदमी ये। हम्म, हम्म, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप पूरा विश्व देखता है, भारत देखता है। लॉन टेनिस की मैचेस, विंबलटन की पूरा देश देखता है, अपने देश में सब देखे जाते हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसी भी कोने में हो विश्व के, भारत की सुंदरी उसमें होती है या भारत का पार्टिसिपेशन होता है, तो रोज को लोग रात भर टीवी के सामने बैठे रहते हैं कि हमारा देश का कहीं नाम तो हाँ, नहीं ऊंचा होगा। सब देखते हैं, हम लोग सब देखते हैं भाई। देखते हैं ना, तो फिर आप क्या सोचते हो कि बस जो इंडिया में हो रहा है वो सिर्फ अंधभक्तों को पता है, विश्व को पता नहीं है, हम्म, हम्म, और सिर्फ आप ही शुतुरमुर्ग शाणे हो, सारी दुनिया का पता है आपको। शुतुरमुर्ग की अप्रोच, ये शुतुरमुर्ग शत्रुमुर्ग की अप्रोच है, बिल्कुल शत्रुमुर्ग की अप्रोच है। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है, पिछवाड़ा में जूता पड़ता है तो उसको समझ में आती है हम्म, कि लोग देख रहे थे। ये सब बिल्ली वाले हैं। बस राहुल गांधी ने कुछ, बस इनकी अपेक्षा क्या है, राहुल गांधी ने वहां जाके बोलना चाहिए कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी हाई। हम्म, हमारे यहाँ हम्म, बेरोजगारी है ही नहीं। अभी हम्म, रिसेंटली जॉब के लिए हम दूसरे देशों को लोग मांग रहे थे, हमारे देश में लोग ही नहीं अवेलेबल, एवरीबडी जॉब। हमारा किसान, हर किसान चॉपर में घूम रहा है, मतलब हर किसान ने अपने खेत में एक एयर स्ट्रिप बना के रखी है, सबके पास 8 सीटर 10 सीटर प्लेन है। बहुत आगे गया है देश। हमारे यहाँ पीने का पानी जितना नहीं मिलता उससे ज्यादा तेल मिलता है, हमारे इंपोर्ट्स बंद हो गए, पूरा विश्व हमसे खरीद रहा है। हमारा मतलब डॉलर 90 1 रुपए की कीमत $90 हो गई है। ये अपेक्षा है इनकी राहुल गांधी बोलने की।
ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी नहीं बोलेगा ऐसा। भाऊ, जो ये देशद्रोही राहुल को बता रहे हैं, अगर राहुल का पूरा भाषण सुन लेंगे तो राहुल को तो इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं फेंकना पड़ेगा। राहुल ने है अमेरिका को आईना दिखाया है, राहुल ने चीन बिल्कुल और यूरोप के सभी देशों को। राहुल ने कहा कि अगर आप भारत में सोचते हैं कि भारत में अगर डेमोक्रेसी का पतन होता है तो दुनिया में डेमोक्रेसी बच जाएगी, ये आप लोग की गफलत है। बिल्कुल 1.4 बिलियन लोग अगर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक सेटअप से एक साथ बाहर हो जाएंगे तो दुनिया की डेमोक्रेसी कैसे उससे अछूती रह जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग पर इतने पॉइंट की बात कि अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया। अमेरिका को अपने हालात में सोचना चाहिए, जो दुनिया में बिल्कुल। दादागिरी करता है, अमेरिका उसको में क्या अपने है, हालात में सोचना चाहिए। अमेरिका में मैं शशि थरूर का भाषण सुन रहा था, हम्म, उसने बहुत बढ़िया बताया था। जब नए नए आए थे कांग्रेस में तब तो बड़े कांग्रेस भक्त थे ना वो, हम्म, अभी थोड़े बीजेपी में हो गए। तब उनने कहा कि अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कपड़ा वहां से आता है, दारू वहां से आती है, एक एक चीज गिनवाई उन्होंने। हाँ, बोले अमेरिका में अपना कुछ भी नहीं है, हम्म, सब बाहर से आता है। आज अमेरिका को लग रहा है हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हम्म, आज मैन्युफैक्चरिंग। आपको ये बैलेंस तभी करना चाहिए था ना। हम्म। आज बता रहे कि भाई मैं 50 पर मैं प्रॉफिट में, मेरे साथ ही प्रॉफिट में काम करूं। क्यों करो भाई, भारत ने ठेका लेकर रखा है अमेरिका को प्रॉफिट दिलवाने का। हम्म, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में होना चाहिए। नहीं हम्म। चाहिए तो भी तेल हमसे ले लो, महंगा तेल ले लो, लेकिन हमसे ले लो। जहाज हमसे ले लो, ये हमसे ले लो, कपास हमसे ले लो। क्यों ले, क्यों ले, अमेरिका के बाप का राज है। मेरे यहाँ किसान नहीं है, मेरे यहाँ किसानों का काम नहीं करेंगे। मैं जरा 2 मिनट आपको तो रोकूंगा। कुल शुरुआत मिलाकर करें गांधी ये दौर नहीं से। नहीं ये करिए, मगर फिर बाद में मैं आपको अर्णव गोस्वामी की एक क्लिप मैंने देखी, उस पर भी बोलूंगा। हम्म, वो उन्होंने AQI। हाँ, उन्होंने ये कहा कि अ, बांग्लादेश में डीप स्टेट ने काम किया, हम्म, वही डीप स्टेट यहाँ काम कर रहा है राहुल हम्म, गांधी को आगे रख के। हम्म, हम्म, मैंने बोला भाई, कांग्रेस पहले दिन से यूएस के खिलाफ स्टैंड लेके बैठी हुई है, हम्म, यूएस के दादागिरी के खिलाफ बोल रही है। प्रधानमंत्री को बार बार कह रही है कि यूएस को आईना क्यों नहीं दिखाते। कांग्रेस की पूरी जिंदगी भर कांग्रेस की टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया थी। 2014 में अमेरिका के तरफ झुके कौन है, ये मोदी जी। अभी आते हैं उस पे। ये इतना मूर्ख है, इसको पता ही नहीं है। मूर्खों को, दरअसल ये मूर्ख नहीं है, देश को मूर्ख समझते हैं। इसे पता ही हाँ, नहीं है मूर्ख समझते हैं। डीप स्टेट जो है एक लंबे इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा हटाने के लिए काम करता है। जो काम 2010 में से 14 तक हुआ है, अर्णव हुआ है, गोस्वामी ने कहा है, वो नहीं सच है। जो हम कर रहे हैं इसको आप सुनिए नहीं उसने और हम कहा, साबित कर देखिए देंगे। अपने आप में क्रेडिट करता है वो। हम्म, बोला डीप स्टेट के लिए केजरीवाल वाज अ पार्ट ऑफ डीप स्टेट। हम्म, तो केजरीवाल ने क्या किया, अन्ना हजारे को लेके आए, यूपी सरकार को डिस्टर्ब किया। तो डीप स्टेट ने तो यूपीए को खत्म किया। अब वो हाँ, कांग्रेस को सामने कैसे कर रही है, वो बोल रही है कि जो यहाँ नरेशन हो रहा है चुनाव मशीनों ईवीएम के खिलाफ, ये डीप स्टेट करवा रहा है। अरे भाई क्यों करवाएगा, उनके यहाँ खुद ही ईवीएम बंद कर दी उन्होंने नहीं अमेरिका नहीं में। भाव भाव भाव, अगर अगर ऐसा है तो फिर डीप स्टेट अडवाणी के पीछे है। बिल्कुल डीप स्टेट ने जीवीएल नरसिम्हा राव से किताब लिखवा दी ईवीएम के खिलाफ। इसका बिल्कुल मतलब बीजेपी डीप स्टेट का टूल रही है 2004 के बाद से। बिल्कुल, 2008-7-8 से टूल रही है इसमें कोई डीप दो मत स्टेट। नहीं है, ये इसमें बेसिकली कोई क्या दो है मत ना, नहीं है। ये अर्णव गोस्वामी वगैरह क्या कहा जाए, तो हम लोग हमेशा बुलाते हैं भाई, नेता ना आते हैं, एक बार यही लोग आ जाए, हम लोग चर्चा कर लें, बहस कर लें। खैर, जरा सुनवाइए भैया, लाइए, सुनवाइए। आदत बिगड़ गया है, खाते हैं इस देश का और इसी देश का शिकायत बाहर जाकर के दूसरे विदेश में करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है और यहाँ की जनता और यहाँ के मतदाता के बीच उनको बात रखना चाहिए, लेकिन जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो देश के खिलाफ ही बात करते हैं, देश की व्यवस्था के खिलाफ बात करते हैं। और देश के अंदर भी जब वो रहते हैं राहुल गांधी, तो सुरक्षा एजेंसी पर उंगली उठाएंगे,
देश के व्यवस्था पर फिर देश में भी उंगली उठाएंगे। इसलिए राहुल गांधी के बारे में यही कहा गया है कि अभी तक ये नेता मैच्योर नहीं हो पाया है, अपरिपक्व नेता है, और यही कारण है कि उनको ये भी नहीं पता है कि कहाँ क्या बात बोलना चाहिए। और राहुल गांधी की भाषा भी आजकल देखते हैं, जैसे होता है बिल्ली खंभा नोचती है, तो वही बिल्ली वाला हाल राहुल गांधी का हो गया है। तो सुधरेंगे तो ठीक है, नहीं तो बिहार देश की जनता जो है 57 साल तक उनको बेरोजगार रखा है, तो आगे भी 3 साल बाद जो है वृद्धावस्था पेंशन में जाएंगे। देश की जनता खुद बेरोजगार है, क्या क्या बात करते हैं सब। एक और नहीं तो है, एक ये पेंशन में तो मोदी जी तो कब के पेंशन में चले गए। हाँ सब ये एक और धुरंधर है, तो फिर आते हैं। तो सुनाइए भैया अगला। विपक्ष की बुद्धि देश विरोधी नेताओं की तरह हो गई है, अलगाववादी नेताओं की तरह हो गई है। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को विदेशी धरती से निशाना बनाना, सत्ता वियोग में विचलित हो जाने के कारण इस जन्म में अब प्रधानमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं होगी, ऐसा मान करके हताशा और निराशा में दिया गया श्री राहुल गांधी जी का जो जर्मनी की धरती से बयान है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तत्काल माफी मांगने की मांग करते हैं। और उनके अंदर दम है तो कांग्रेस आकर के बूथ पे लड़े, राज्यों के विधानसभा में लड़े, निकायों के पंचायतों के चुनाव में लड़े। मेहनत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या टीएमसी जीतेगी, ये नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करेगा तो कमल का फूल खिलेगा। भाजपा की सरकार 2047 तक देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और जिन प्रदेशों में नहीं है वहां पर भी बनेगी। अच्छा गजब है, सबका टारगेट 47 तक है, जब तक इनकी लाइफ एक एक्सपेक्टेड लाइफ है। उसके बाद बस ये इनकी एक्सपेक्टेड लाइफ अपना अपना जीवन प्रत्याशा के मुताबिक 47 रखे हैं। उसके बाद देश रहे न रहे, ये नहीं कहते कि अब देश में हमेशा हमारा राज रहेगा। ये कहो ना, हम कहते हैं ये कहो। एक और सुनाइए, एक और सुनाइए, एक और सुनाइए, एक और सुनाइए। निश्चित तौर पर देखिए कि हमारा यही कहना है कि देश के बाहर जाकर देश के जो भी अंदरूनी मामले हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या और कोई चीजें हो, देश के बाहर देश की बुराई करना या कुछ चीजें बोलना वो उचित नहीं है। बिकॉज अभी तक की प्रैक्टिस और प्रेसिडेंस रहा है कि देश का कोई भी जिम्मेदार आदमी जब विदेश में जाता है, चाहे वो मंत्री हो या लीडर ऑपोजिशन हो या जिम्मेदार कोई आदमी होता है, तो हमारी देश की छवि और हमारा देश का जो इज्जत है उसको बरकरार बनाए रखना चाहिए। और देश में जो अच्छा काम हो रहा है, भले आप प्रशंसा मत करो पर बुराई तो मत करो। महाराष्ट्र चुनाव का खास करके उन्होंने जिक्र किया कि बस हटा दीजिए भाव, मैं इनको इसीलिए लाया, अब बाकी बच्चा बाद में सुनाऊंगा। इनसे ही जाऊंगा सवाल पे। इन्होंने कहा देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, आज तक भारत में परंपरा रही है कि विदेश में आलोचना नहीं करता। इतने गैर जिम्मेदार नेता के साथ ये कैसे चले गए? इतना गैर जिम्मेदार नेता जो दुनिया भर में जाके शर्मिंदगी जताया भारत में पैदा होने पर, और लोग पैदा नहीं होना चाहते थे। भारत में इतना करप्शन था, भारत में पिछली सरकारें इतनी निकम्मी नाकारा थी। इतना गैर जिम्मेदार आदमी नरेंद्र मोदी है, सबसे गैर जिम्मेदार आदमी। और अशोक चौहान के हम बुझौनी नहीं बुझाएंगे, अगर अशोक चौहान की परिभाषा देखें तो उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी से गैर जिम्मेदार इस देश में कोई नहीं हुआ। कोई नहीं, तो फिर ये गए क्यों? गए क्यों? ये खुद ही गैर जिम्मेदार आदमी है जो अपने पिताजी की विरासत नहीं संभाल सके, जो भ्रष्टाचार में आखंड डूबने के कारण ईडी की फटकार से और सीबीआई के डर से ये बीजेपी का रास्ता पकड़ लिया है। जिस आदमी को लीडर ने डीलर बोला था, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके उन्हीं के चरणों में ये मुजरा करने पहुंच गए। ये शंकरराव चौहान के नाम पे गाली है। शंकरराव चौहान अपने वसूलों के लिए जाने जाते थे। शंकरराव चौहान की इतनी हिम्मत थी कि वो इंदिरा गांधी को भी बता सकते थे कि मैडम ये गलत हो रहा है। उन्हें मास्टर बोलते थे महाराष्ट्र की राजनीति में। मास्टर मतलब हेडमास्टर, स्ट्रिक्ट। उनके नाम पे कभी करप्शन नहीं रहा। उनके बारे में कहावत है आशीष जी, जब शंकरराव चौहान मुख्यमंत्री पद से हटे
तो इस्तीफा देके ये नांदेड़ गए। नांदेड़ जाने के लिए मुंबई के रेलवे स्टेशन पे हाथ में बैग लेके खड़े थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। तो एक कुली आया, उसने कहा कि आप तो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, शंकरराव चौहान जी। उन्होंने कहा नहीं था, मैं इस्तीफा देके आया हूँ। लाई, बोले बैग मेरे पास लाइए। बोले कोई नहीं, मैं बैग लेके जाता हूँ। और बैग लेके एक आदमी साथ में नहीं, चले गए अंदर। उनको ये शो बिजनेस नहीं था। ये मुख्यमंत्री पद से हटाए गए तो कितने ट्रक माल लेके गए, पूछो इनको जरा। और ये वो शख्स है, मतलब क्या इसके लिए शब्द यूज करें, जिसने सर्कुलर निकाला था सरकार से, ऑर्डर कि अशोक के नाम में अशोक राव लिखा जाए। ये पहला मुख्यमंत्री देखा मैंने मेरे जीवन काल में जो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऑफिशियल सर्कुलर निकालता है। शंकर राव बने तब राव लगा, यशवंत राव बने तब, शरद पवार जब बने तब शरद राव बोलने लगे। अशोक राव तो बने, अशोक तो नीचे उतर के आज क्या हो गया, और राव लिखो करके सर्कुलर निकाला। थू हो गई सबको, लेकिन डर के मारे गए, आज फूट के आंसू रो के गए। लेकिन उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी के पास फिर एक महिला चली गई कांग्रेस में, लेकिन उसका जिगरा इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा है, 1000 गुना ज्यादा। प्रज्ञा सातव, हाँ, पास वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। उन्होंने कहा कि मैं गई हूं क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास नहीं हो रहा है, मेरे दिवंगत पति का सपना मुझे पूरा करना है, लेकिन मेरे आदर्श हमेशा राहुल गांधी और सोनिया गांधी रहेंगे। और ये आज राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं, जिस राहुल गांधी की कृपा से ये मुख्यमंत्री बने थे। ये कृपा कोट खराब है। ये इनके कोट सुनना मतलब अपने आप को हंसी आती है। नहीं, अब देखिए ना, एक नहीं, इसके पहले केशव मौर्य थे, कहे कि ये जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वो आदमी कह रहा है जो 2017 से स्टूल पकड़कर मुख्यमंत्री बनने के इंतजार कर रहा है, वो दूसरे को बताइए। अरे बाबा, पिछला चुनाव हार गया। हाँ, विधानसभा चुनाव विधायक ही हार गया अपना, विधायक ही हार गया। जो विधायक नहीं बन पाता वो दूसरे के प्रधानमंत्री बनने पे कमेंट करता है। भाऊ, सीएम बनने का इस मतलब आज भारत की राजनीति में पीएम इन वेटिंग का नाम लेते ही आदमी के जेहन में एक ही चेहरा आता है, अडवाणी जी का। अडवाणी जी पीएम इन वेटिंग रही गए पीएम इन वेटिंग। लेकिन अडवाणी जी के रिकॉर्ड अगर अभी भी मतलब अपने पूरा उम्र बचा हुआ है, लेकिन अगर एक कहे ना समय के अंतराल को देखें तो अडवाणी जी का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा है सीएम इन वेटिंग में, तो ये भाई साहब हैं केशव मौर्य। स्कूल पर ये याद 10 साल से स्कूल पर पहली बार जब योगी बने तब ये यहाँ के एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, याद होगा आपको। टेंशन में। जो अपने मुख्यमंत्री को गाली देता हो, जो अपने सरकार के खिलाफ बोलता हो, जो पार्टी के अंदर ही ग्रुपिज्म करता हो, भाजपा के लिए, योगी के लिए, जो अपने मुख्यमंत्री के लिए जो परेशानी हो, वो राहुल गांधी को परेशान बता रहा है, परेशानी बता रहा है। बताओ, देश की गजब के लोग। इस पे अगर अमित शाह की कृपा नहीं होती तो योगी आदित्यनाथ ने इनको व्यवस्था बहुत पहले कर दी थी, ये वहीं पे बैठे होते अपने विधानसभा क्षेत्र में घर हारने के बाद। लेकिन वो तो डिप्टी सीएम बना दिया है कि चलो ठीक है अपना। इतना ज्यादा रूठने वाला, जो कहते हैं ना कि फलाने हमेशा रूठ जाए, इतना ज्यादा रूठने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। हमेशा रूठने लगते हैं, आज अयोध्या नहीं जाएंगे, कल कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाएंगे, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री इनको लोडे नहीं लेता है। बताओ यार, तुम्हारे आने से कौन सा कैबिनेट मीटिंग रुक रही है? वो आदमी राहुल गांधी ज्ञान दे रहा है। नहीं तो इसका लोड आपको भी नहीं लेना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ, इसका कोड दिखाने लायक नहीं है। जरूरी है भाऊ, ऐसे लोगों को देश जाने कि ये कौन कौन लोग हैं इस देश की भारतीय राजनीति के स्तंभ है। हाँ, यूपी में ये सीएम इन वेटिंग है ना, बराबर बोला आपने।
सीएम इन वेटिंग को अगला दिखाना जरूरी था। अगली बात। देखिए, राहुल जी संसद के सत्र के दौरान हिंदुस्तान के बाहर जाकर संसदीय प्रणाली, जांच एजेंसियों, लोकतंत्र, संविधान सब पर हमले करते रहे हैं और इससे गैर जिम्मेदाराना कोई नजरिया नहीं हो सकता है कि अपनी बातें वो संसद के चालू सत्र में कह सकते थे। बजाय इसके उन्होंने हिंदुस्तान के बाहर जाकर भारत को गालियां देने का विकल्प चुना। ये पता है, इनके परिचय के साथ ही मैं आखिरी कमेंट लूंगा। ये नीतीश कुमार के प्रवक्ता राजीव रंजन हैं, जिन्होंने अभी एक बच्ची की जो है एक महिला का हिजाब खींचा था और मिडिल ईस्ट तक ये बता रहा ना कि विदेश में जाकर के नहीं, अपने घर में कर लीजिए, घर की बात है, कोई जानने न पावे। तो ये छिपा लेते ना नीतीश वाला, इसलिए इनको सुनाया। पूरी दुनिया में थू थू करवाया है इस प्रवक्ता के नेता ने, पूरी दुनिया में थू थू करवाया। मैंने क्या कहा आपको, वो तो राहुल गांधी नहीं बताया। ऐसे कई वाकया है भारत के जो विश्व में छपते हैं, हाँ। प्रोमिनेंट छपते हैं, उस पर रिएक्शंस होती है। वहां जो लोग विदेशों को देखते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इस बात का। ये जो फुहड़गिरी करी, उससे कुछ नहीं हुआ। रुपए का मूल्य मतलब 90-91 रुपए पहुंच गया तो देश की इज्जत नहीं बढ़ी। सिर्फ जब यूपीए की सरकार होती है तभी देश की इज्जत रुपए के साथ होती है, और मोदी आते से ही फिर देश की इज्जत रुपए के साथ नहीं होती। कौन रुपया 90 हो जाए 100 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? सारा विश्व हंस रहा है, आप अपनी करेंसी मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सारा विश्व हंस रहा है। विश्व मोदी जी की बात मान रहा है कि ट्रंप की बात मान रहा है कि मैंने धमका के इनका सीज फायर करवाया। और वहां पे नोबेल जो अवार्ड देती है कमेटी, उसके पास जो फाइल पहुंची उसमें लिखा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हमने करवाई, और रिकॉर्ड पे बोल रहा है। वो 100 से ज्यादा बार बोल चुका है। तो जब विश्व सुनता होगा तो उसको नहीं मानता होगा कि विश्व आपके ही बस मोदी जी को ही मानता है। मोदी जी को कितना विश्व मानता है हमने देखा ना। विश्व का एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की बुराई करने के लिए, और पाकिस्तान के साथ 3-3, 4-4 देश खड़े हो गए भारत के साथ लड़ने के लिए। चाहे चाइना हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे टर्की हो, और भारत के साथ, भारत के टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए से ये भेजे थे आपने 51 लोग 35 देशों में, ये शॉपिंग करके वापस आ गए। बोले हाँ उन्होंने निर्भसना की। अरे निर्भसना तो सारा विश्व कर रहा था, पाकिस्तान भी निर्भसना कर रहा था। तो पाकिस्तान की निर्भसना को तो हम मगरमच्छ के आंसू मानते हैं। यह हमला पाकिस्तान की धरती से तय हुआ था, ये हो गया था हमला यहाँ पे। यदि हुआ है तो पाकिस्तान को आतंकी देश बोलने में किस देश ने भारत का साथ दिया, ये बताए फिर। विश्व गुरु बोलते अपने आप को, और ट्रंप की बात सारा विश्व सुन रहा है। रोज जूते पड़ रहे भारत को, और टैक्स टेरर बोल रहा है भारत को, और भारत नीचे मुंडी करके सुन रहा है। और आप कहते हो भारत की बहुत इज्जत बढ़ रही है। जरा अंडे से बाहर निकलो, कुएं से बाहर निकलो। विश्व क्या सोच रहा है, विश्व क्या देख रहा है, ये देखिए। नहीं, और मैं आपके एक मंत्री का नाम उस आइलैंड के खेल में आ गया। उससे देश का नाम बहुत ऊंचा हो रहा है। पुरी साहब का, और उसी पुरी साहब का नाम फिर आ गया। अभी तो शुरुआत है ये सब। आखिर में एक ही बात कहेंगे, जो लोग ये कह रहे हैं कि जाकर के बाहर राहुल गांधी देश के बारे में, हम दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, दर्शकों को इस बात से समझना चाहिए, सोशल मीडिया आज पूरे विश्व में पूरे विश्व को इतना नजदीक लेके आया है कि विश्व की किसी भी जगह पे घटित घटना चंद मिनटों में आपके सामने खड़ी होती है। विश्व में क्या क्या हो रहा है यह हमें पता है। भारत के कितने भगोड़े बाहर पड़े हुए हैं ये सारे विश्व को पता है। भारत में एक भगोड़ा भारत में मिल नहीं रहा है अमेरिका को, ये विश्व को पता है।
जब अमेरिका में अमेरिका की एजेंसियां कोर्ट में ये बताती है कि भारत सरकार अडानी को वारंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, तो भारत की बहुत इज्जत होती है। कितना ताकतवर देश है। एक उद्योगपति जो प्रधानमंत्री की इर्द गिर्द घूमता है, उसको ये अपना अरेस्ट वारंट तक नहीं इशू करवा सकती। ये भारत की ताकत क्या विश्व को पता नहीं है? बाहर के अखबारों में नहीं छपता? क्या न्यूयॉर्क टाइम में नहीं छपता? फेडरल agencies have told the court that the Indian government has failed to execute the warrant. भारत की बहुत इज्जत होती है। मोदी खुद अडानी कहते ने हैं पैसे खिलवा के वहां पे अडानी ने पैसे खिलवा के गलत बयानबाजी करवाई, ये आरोप है अडानी पे। अडानी पाक साहब है तो जाए अमेरिका में लड़े वहां पे डंकी की चोट पे। क्यों छुपाए पल्लू में यहाँ पे भारत माता के कलंकित करने के लिए? सब बहुत सब चीजें है। साफ- भारत की इज्जत बेइज्जती हो रही है। पूरे विश्व ने देखा भारत की बेइज्जती। जैसे मेसी का सब दूर स्वागत होता है, वैसे हमारे ओलंपियन जो लड़कियां हैं कुश्ती खेलने वाली, वो जब गोल्ड मेडल मिला तो उसको सारे विश्व ने छापे उनके फोटो। पूरे विश्व ने उनको शेरनी कहा। वो भारत के लिए सीना चौड़ा करने वाली बात थी। उनकी इज्जत लूटती है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती, सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है उसको। ये आपके सरकार का कारनामा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जिसने भारत का जनगण मन बजवाया मेडल लेते हुए, उसकी इज्जत पे हाथ डालने पे एफआईआर नहीं कर पाते आप लोग। ये भारत की मजबूत सरकार 56 इंच वाली, क्या विश्व ने नहीं सुना, देखा नहीं? बहुत इज्जत बढ़ी। विश्व देख रहा है। मैं तो यही कर रहा हूँ ना, आखिर में मोदी के ही जुबान से आपने एक नहीं हर भाषण में सुना होगा, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जब पूरी हाँ। दुनिया देख रही तो राहुल बतावे ना बतावे, पूरी दुनिया देख रही है ना कि आप क्या कर देख रहे रही हो। ना क्या हो रहा है। नीतीश कुमार को यहाँ पूरी दुनिया ने देखा है ना। यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर क्या बयान है क्या? हाँ। तो गजब है। पूरी- आप पूरे विश्व को, मीडिया को गोदी मीडिया समझ रहे हैं। यहाँ पामेरियन पाल के रखे हैं आपने, हाँ। जो राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाएंगे। लेकिन विश्व का मीडिया पामेरियन नहीं है। विश्व का मीडिया ताकतवर है। जब ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया तो राष्ट्रपति का भाषण रोक दिया चैनलों ने कि हमारा दायित्व हमारे दर्शकों के प्रति है, हम झूठ परोसने नहीं देंगे। आपने चंद पामेरियन यहाँ पाल रहे हैं, उनको बिस्कुट डालते रहते हैं, वो तुम्हारे चरणों में रहते हैं, तुमको लगता है पूरा विश्व का मीडिया ऐसा है। चलिए, अभी तो शुरुआत हुई है, दुनिया भर में बातें होनी, और ग्लोबल विलेज है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। आज एक जानते देश हैं। दूसरे पर क्यों अटैक कर देता है? यूक्रेन और रूस का जंग सिर्फ इसलिए शुरू हो गया कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था। बस तो इनडायरेक्ट देखिए, नाटो में जाता तो जाओ भाई, तुम्हारे जाने में हमारा क्या नुकसान है? इसलिए अगर भारत जैसे 1.4 बिलियन के देश में डेमोक्रेसी पे खतरा आएगी, ये खतरा मंडराएगा, तो पूरी दुनिया में चिंता लाजमी है, और उस पर चर्चा भी होगी। जब चिंता होगी तो चर्चा होगी और सवाल जवाब होंगे। देश के नेताओं को जवाब देना भी पड़ेगा, दूसरी बात, चाहे देश में चाहे विदेश में। पूरे विश्व में मानवता जिंदा है। आज पूरे विश्व में 4 लोग भी मारे जाते हैं तो वो दुख मनाते हैं। हाँ, पूरे विश्व में हमारे जैसे बदतमीज और निर्लज्ज नेता नहीं है जो लोग कहें कि किसान मरे तो मेरे लिए मरे क्या। हाँ। सरकारें चली जाती हैं विदेशों में, तो 2-4 किसान अगर मर गए तो प्रधानमंत्री बदल जाता है। खैर, क्यों? इजाजत दीजिए। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग हो रही है, वहां प्रधानमंत्री को लोगों ने घेरा है। हाँ, हम रोज रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को लोग कह रहे कि इस्तीफा दे दो, आप सुरक्षा नहीं दे सकती, इस्तीफा दे दो। आप कारण मत बताओ कि इधर से आया उधर से आया, इसने किया उसने किया, इसका पीछे उसका पीछे, कुछ नहीं। हमारे यहाँ फायरिंग हुई, आपके होते हुए फायरिंग हुई, आप सुरक्षा नहीं दे पाए, आप इस्तीफा दे दीजिए। दैट्स ऑल। चलिए, अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। कार्यक्रम हमारा फिर हो गया लंबा, कोशिश करते हैं हो जाता लंबा। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।